Good morning, friends. We are here with the sixth round of Teachers' Interest Test under the Teachers' Aptitude Test. Please watch the video till end, and if you are new, please subscribe and hit the notifications button so that you get updated whenever we upload a new video. So here we begin with the question answers. We have finished till question number 77. And this is the 31st video of the English series, and here we begin with the question number 78. Which is generally most effective for bringing the isolated student in the group? कक्षा में जो अलग थलग बच्चा है समूह से, उसे समूह के अंदर लाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? The answer is A. Aiding him in developing a skill which has prestige value in the group. उसमें एक ऐसे कौशल का विकास करना जिसका समूह के अंदर प्रतिष्ठात्मक मूल्य काफी अधिक हो. Question number 79. The primary purpose of the student council is that of. जो विद्यार्थी परिषद है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी. Providing students with opportunity for social growth. छात्रों को सामाजिक विकास का अवसर उपलब्ध कराना ही उसका उद्देश्य है. Question number 80. And I have ticked them so that you can see properly which is the proper response. Question number 80 is, from an administrator's point of view, the primary benefit to be derived from students' self-government is. विद्यार्थियों की सेल्फ गवर्नमेंट से प्रशासक के दृष्टिकोण से प्राथमिक लाभ क्या है? The answer is C. Promoting pupil growth towards the various objectives for which the school exists. विद्यार्थियों को विभिन्न उद्देश्यों की ओर उनके विकास को बढ़ावा देना जिसके लिए कि स्कूल विद्यमान है. The answer is C. Question number 81. According to modern educators, the student council is not meant to function as, यहाँ पे MEND दे रखा है, it is supposed to be MEANT. The student council is not meant to function as. आधुनिक शिक्षाविदों के अनुसार विद्यार्थी परिषद किस कार्य के लिए नहीं बनी? The answer to 81 is D. An agency of administration and faculty of supervision. वह प्रशासनिक एजेंसी भी नहीं है और वह निगरानी का संकाय भी नहीं है. The answer is D. Question number 82. If we are to develop best possible citizens for our democracy, it is essential that. यदि हमें सबसे उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है अपनी प्रजातंत्र के लिए, तो ये अति आवश्यक है कि C. By helping him form democracy in education be patterned upon democracy in everyday life. कि जो आम जीवन है उसमें जो प्रजातंत्र है उसी का उदाहरण हम जो एजुकेशन में प्रजातंत्र है उसमें भी दें. डेमोक्रेसी इन एजुकेशन भी पैटर्न अपॉन डेमोक्रेसी इन एवरीडे लाइफ. द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a way in which the modern school contribute to the individual's growth in citizenship. निम्न में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिसके द्वारा जो आधुनिक विद्यालय हैं वो बच्चे की नागरिकता के विकास में मदद करते हैं? The answer is C. By helping him form definite ironclad conclusions on social issues. I'll repeat the question again in Hindi. निम्न में से वह कौन सा तरीका नहीं है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का विकास अच्छे नागरिक में किया जा सके? The answer is C.
by helping him form definite, ironclad conclusions on social issues. Question number 84. The strongest argument which forwarded against student self-government is that जो विद्यार्थियों की स्वयं की सरकार बनाई जाती है, सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ सबसे मजबूत दलील क्या दी जाती है? 84 का आंसर है बी. इट ऑफन लीड्स टू अब्यूज ऑफ पावर बाय दोज इलेक्टेड टू ऑफिस. यह शक्तियों के दुरुपयोग का परिणाम होता है यहाँ पर उन लोगों के द्वारा जिनका चुनाव किया गया है. क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्कूल हैंडबुक? स्कूल की जो हैंडबुक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? द आंसर टू 85 इज ए. टू क्लैरिफाई फॉर स्टूडेंट्स द स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशंस. ताकि विद्यार्थियों को नियम कायदों के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा सके. क्वेश्चन नंबर 86. द टीचिंग मेथड in the secondary school that is the most conducive to the teaching of the democracy and democratic procedures is? 86 का आंसर है डी. रोल प्लेइंग मेथड. क्वेश्चन नंबर 87. Which of the following methods would be least effective as a means of contributing to student growth in citizenship? विद्यार्थियों का जो विकास है एक अच्छे नागरिक में, उनमें से निम्न में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त तरीका होगा? किताब में द आंसर गिवन इन द बुक इज सी, बट एक्चुअली इट मस्ट बी डी. ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द बेसिक टेक्स्ट बुक एज द फाइनल अथॉरिटी इन सेटलिंग सोशल इश्यूज. अगर आप एक जो मूल टेक्स्ट बुक है उसी को फाइनल अथॉरिटी मान के, आखिरी फैसला मान के सभी सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेंगे तो ये गलत होगा एक नागरिक की दृष्टि से. क्वेश्चन नंबर 88. गुड क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय? द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 88 इज डी. द प्यूपिल ग्रोथ इट प्रमोट्स. जो अच्छा कक्षा का डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? विद्यार्थियों के विकास में बढ़ोतरी से. क्वेश्चन नंबर 89. द बेस्ट क्राइटेरियन फॉर जजिंग द सीरियसनेस ऑफ प्यूपिल मिसबिहेवियर इज द वे एंड द एक्सटेंट टू विच. सबसे उत्तम तरीका क्या है किसी विद्यार्थी के दुर्व्यवहार को आंकने का? द आंसर टू 89 इज बी. इट इफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास. जिस हद तक वह क्लास के डेवलपमेंट में बाधा डालता है उस हद तक ही यह मामला गंभीर होगा. क्वेश्चन नंबर 90. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू कंसिडर मोस्ट बेसिक एज अ कॉज ऑफ टीचर फेलियर इन डिसिप्लिन? अगर कोई टीचर और शिक्षक अनुशासन में विफल होता है तो निम्न में से कौन सा उसका सबसे सटीक कारण होगा? ये आंसर इज बी. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ डिसिप्लिन. अनुशासन के उद्देश्य का सही ज्ञान न होना ही इसका कारण होगा. दिस इज ऑल फॉर टुडे. दिस इज द 31st video. This is the 31st video in the English series. Other videos are also uploaded in the playlists. Please watch them also. Please always watch the video till the end. We will keep uploading new videos. So be regular, and if you feel that we have helped you, please like, share and subscribe. And please hit the notifications button. Thank you. Have a nice day.